Hi Amol, good evening. I hope I'm audible. Hello, yes, you are audible. All right, all right. Hello. Yes, yes. We will wait for let's say 2 more minutes or 5 minutes. Let others join, and then we will start. Okay. Yeah. Yes. I think we can start now. So please confirm the screen which I am sharing is visible. I am audible, and the meeting is being recorded. Your screen is visible. You are audible. Yeah. Thank you. Thanks Okay. for confirmation, Amol. So good evening, everyone, and welcome again. So today we will be starting a new module. As I said, that is a stepping stone and one step closer to our machine learning and AI journey. So the third module is exploratory data analysis. And I hope so far whatever we have learned, the Python as well as the statistics, I hope you will do the revision on those so that you will get maximum of whatever we are going to learn, and it will be very helpful for you guys to make the journey smooth. So please make sure at least uh, to achieve the goal of learning and implementing machine learning and artificial intelligence, and if you want to work on this field, so please make sure you are giving at least 1 hour every day to learn these things, and that will be very helpful, as I said, for you to become a strong uh, we can say engineer in AI and ML. So this is the third module, exploratory data analysis. And in this module, we will be learning all about how the data, the behavior of the data, the spread of a data, as well as understanding the data and pre-processing, m- making that data in such a way that data we can feed to the machine learning model. And that's the importance of exploratory data analysis. So as I said, two and three things which are very important to understand your data. Then if you find the scope to pre-process and feature engineering in that data, then do that. And that we will learn in EDA. And then the very important reason why we are going to do these things is because we will be, well, like we are going to feed whatever the data, no matter what kind of data and whatever it is, we will be feeding that data to machine learning to understand it better, so that machine will learn from that data. And
machine will use the data Before you drop, just so one thing I meant to say. to learn and then So to the predict. team is here. If there's anything that you feel is pending on the KT side, do let us know. Then yeah, s- let's start with this, guys. And first thing, so I will ask you the question regarding EDA. So can anyone tell me in terms of EDA, if you have, let's say, tried to explore this, and what is your opinion on EDA? What do you think if, what the EDA and why it is important? And if you have done, because in our second module, we have learned about EDA, like a small part, because when we were learning about the statistics now, in statistics we were exploring the things as well. All right. So what is your opinion on EDA? And what kind of things in terms of libraries, if you know it in terms of libraries, so which kind of libraries we can use in this explorative data analysis? Yeah, guys. So what is your understanding about EDA? Can anyone pitch in over here? आपको EDA के बारे में मतलब what is your expectation and why this layer is important? Anything, if whatever you like, whatever the idea you have about EDA, we will discuss on it, and then we will start practically uh, understanding the things. Yes, anyone? Okay, all right, no worries. Fine. So I hope then whatever I have mentioned, the explorative data analysis about the things and what this EDA is, I hope के आपको समझा होगा. ठीक है? आपका ओपिनियन क्या था EDA के बारे में? Then we will again discuss on that कि because whenever we are starting a new module, very important thing is we go with three W's. One is what, the second is why, and the third one is the how wala part. How wala part we will be exploring using the practical examples. So what is EDA? Just before this, I have explained to you. If you have anything in your mind, you can even add up those things. Like आप बता सकते हो EDA के बारे में. Why it matters ये भी डिस्कस हो गया. आई होप कि आपको वो क्लियर हुआ होगा, राइट? तो how वाला पार्ट विल बी एक्सप्लोरिंग. And as I said, कि understanding the data set, the data structure. So we know कि data, yes, in our last session, if you remember, मैंने आपको बोला है, and that will be the always वही केस रहेगी कि डेटा जो भी अपना रहेगा, डेटा will be always in this format, always. जब हम मशीन को देंगे, इट विल बी ऑलवेज इन दिस फॉर्मेट. बट अगर आपको डेटा इंजीनियर्स के थ्रू अगर डेटा आता है, तो जरूरी नहीं कि वो हमेशा ऐसे रहेगा. वो टेक्स्ट फाइल में भी हो सकता है, राइट? दैट कुड बी ऑडियो फाइल्स, वीडियो फाइल्स हो सकते हैं. और क्या हो सकता है? ऑडियो फाइल्स, वीडियो फाइल्स, और इवन अवर रेगुलर काइंड ऑफ डीबीएमएस. फाइन. तो गाइज, very first, like the way, if you are dealing with such kind of data, तो हम क्या करते हैं, using our NumPy libraries, TensorFlow libraries, we can convert this data into our tabular format. ठीक है? Why tabular format? Because whenever we will be proceeding further with this data, जो भी डेटा के साथ हम जाएंगे मशीन लर्निंग को फीड करने के लिए, मशीन लर्निंग अंडरस्टैंड द डेटा इन दिस फॉर्मेट, राइट? सो या इन आवर फोर्थ मॉड्यूल हम इसको मशीन लर्निंग को कैसे देते, दैट ईच एंड एवरीथिंग वी विल अंडरस्टैंड. सो एज आई सेड के रोज एंड कॉलम्स, ठीक है? तो डेटा सेट का डेटा स्ट्रक्चर जो भी रहेगा अपना, यू नो इट बेटर कि रोज और कॉलम्स फॉर्मेट में रहेगा. वी कैन से दिस एज अ फीचर्स एंड दिस एज अ रोज. ठीक है? और मैंने ये भी आपको बताया कि जब भी मैं बोलूंगा डेटा पॉइंट्स आर स्प्रेड और स्कैटर्ड, तो मतलब क्या, जब भी मैं बोलूंगा कि फॉर एग्जांपल लेट्स से दीज आर आवर डेटा पॉइंट्स, ओके, दीज आर आवर डेटा पॉइंट्स, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस. ठीक है?
तो दिस डेटा पॉइंट्स आर नथिंग बट द एंटायर रो इन आवर डेटा। हाँ, मतलब ये एक डेटा पॉइंट है, इसका मतलब क्या है, ये एंटायर रो है अपनी डेटा की, विच इज रिप्रेजेंटिंग आवर एंटायर रो। ठीक है, सो दिस इज द वन इंपॉर्टेंट स्टेप गाइस, बिकॉज ये इस डेटा को इन अ मैथमेटिकल वे अगर रिप्रेजेंट करना है तो जनरली हम उसका एग्जिस्टेंस इस वे से निकालते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, तो हाउ फार इट इज फ्रॉम ओरिजिन, ये ओरिजिन हमको पता है ना, जीरो और जीरो, है ना, एक्स एक्सिस जीरो वाई एक्सिस, तो ओरिजिन से कितना दूर ये हो उसका डिस्टेंस है, हाउ फार इट इज। तो दोज आर ऑल थिंग्स, and based on this terminologies we will be exploring the data using graphs and using certain methods। जो लाइब्रेरीज के जो हमने देखे अब पहले, उन लाइब्रेरीज के जितने भी मेथड्स है उसको हम उसके उसका यूज करके, उसके फंक्शंस का यूज करके हम डेटा को एक्सप्लोर करेंगे। दैट इज आवर पर्पस इन एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। ठीक है, तो there are few more things के why we do EDA, so understanding, identifying the missing values, and that is very correct guys, duplicate values, outliers, because when we are giving the data to machine, as I said, when we are giving data to machine ना, तो मशीन को जो डेटा देंगे वो अगर रॉ और गार्बेज डेटा रहेगा तो ऑब्वियसली मशीन भी उस वे से सीखेगा और आउटपुट और जो इन्फरेंस है उस वे से देगा, विच इज नॉट द करेक्ट और वी कैन से एक्यूरेट रिजल्ट्स। ठीक है, एंड इसका एनालॉजी अगर देखेंगे तो मैं बताता हूँ आपको, देखो, इफ यू आर अ स्टूडेंट एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम, अगर आप स्टूडेंट हो और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, यू नो के फ्रॉम वेयर टू रेफर, आप एक प्रॉपर किताब जहां पे प्रॉपर नोट्स आपने निकाले हैं, प्रॉपर नोट्स और जो भी आपका रिटर्न जो गाइड है, जो प्रॉपर जो किताब है, उसको अगर आप प्रॉपर अंडरस्टैंड करके एग्जाम दोगे तो ऑब्वियसली आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, एग्जाम में आप अच्छे से लिखोगे। ठीक है, बट वेन यू आर लेट्स से लर्निंग, मतलब एज आई सेड द एनालॉजी, आवर ह्यूमन ब्रेन does the same thing। ठीक है, and if you are just let's say referring garbage or let's say not a properly prepared data or properly structured, जो भी आपके चैप्टर है सिलेबस का जो भी है वो उसको अगर आपने ठीक से नहीं अंडरस्टैंड किया बिकॉज ऑफ दिस डेटा विच इज नॉट इन अ प्रॉपर स्ट्रक्चर, तो क्या होगा, ऑब्वियसली आपका कंफ्यूजन रहेगा, फिर एग्जाम में यू विल नॉट एबल टू परफॉर्म गुड। सिमिलर वे मशीन को भी जो डेटा दिया जाएगा, दैट डेटा शुड बी इन अ प्रॉपर वे, स्ट्रक्चर्ड वे। ओके, एंड दैट्स व्हाई दिस लेयर ऑफ ईडीए इज एप्लीकेबल। तो ईडीए का काम यही है कि जो भी डेटा आएगा, अगर वो रॉ है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, मिसिंग वैल्यूज है, गार्बेज है, नॉट बैलेंस डेटा है, उसको एक प्रॉपर प्रॉपर डेटा बना के उस डेटा को मशीन को दो, तो जाके मशीन का एक्यूरेसी और रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। सो दैट इज द पर्पस गाइस। ओके, सो आइडेंटिफाइंग मिसिंग वैल्यूज, डुप्लीकेट एंड आउटलायर्स, तो आउटलायर्स के बारे में हमने डिस्कस किया था और इसको हम ग्राफिकली भी देखेंगे आउटलायर्स क्या होता है। ठीक है, एंड डेटा क्लीनिंग टेक्निक्स यूजिंग पांडास। नाउ एज आई सेड कि हमारा जो अभी आगे जो होने वाला है प्रैक्टिकल, आई विल एक्सप्लेन यू प्रैक्टिकल वे कि हाउ द ईडी इज बीइंग अप्लाइड टू द डेटा। ठीक है, बट बिफोर आपको ये कंसेप्चुअली यू शुड अंडरस्टैंड कि अगर एक प्रॉपर वेल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन है तो होते हैं डेटा इंजीनियर्स। ठीक है, डेटा इंजीनियर्स होते हैं और वी आर लाइक एआईएमएल इंजीनियर्स, हाँ, डेटा साइंटिस्ट और मशीन लर्निंग इंजीनियर। अगर ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो क्या होता है, डेटा इंजीनियर्स एक काम करते हैं, जैसे कि रियल डेटा है तो फिर वेबसाइट का डेटा, या लेट से कुछ यूट्यूब का डेटा, लेट से और लेट से इफ data engineers are collecting the data of real customers for that organization, so they collect the data, they store it in a data, so there are concepts, data lake, data server करके concepts है data engineering में। तो storage mechanism है, because it is a big data, huge data, तो उसको store करना, manage करना, prepare करना, all task is done by data engineers। तो उसके लिए there are several technologies and terminologies, they do that। okay, what is your job? तो वो जैसा का वैसा डेटा डंप करते हैं, उनको क्लीनिंग प्रोसेसिंग अगर इंस्ट्रक्शन दिया है तो फिर उसके बाद ये जो भी बिग डेटा के फिर वो क्लस्टर बनाते हैं छोटे छोटे, और उसको फिर प्रॉपर वे से उसको पाइपलाइन में अगर उनको इंस्ट्रक्शन है तो देन दे विल डू के व्हाट योर डेटा क्लीनिंग, और अदरवाइज दे विल पास यू द डेटा फाइल्स आपको देंगे। ठीक है, सो एज आई सेड कि डेटा इंजीनियर्स कैन ऑल्सो क्लीन द डेटा अप टू देयर लेवल। ओके, बट द थिंग्स के एज अ डेटा एनालिस्ट एंड डेटा साइंटिस्ट
whatever data you are getting na, you have to explore that data and you have to do like you have to, आपको कुछ कंक्लूजन और उसमें जो भी आपके डिसीजन है वो लेने पड़ेंगे। एंड उसके लिए हमने स्टैटिस्टिक्स को, इन्फरेंशियल और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हमने एक्सप्लोर किया है। एंड यू कैन, जैसे मैंने बोला, रिवाइज करो और रिवीजन करो तो आपको और ज्यादा उसमें रिलीवेंट और आप रिलेट कर पाओगे, ठीक है। तो एज अ डेटा साइंटिस्ट एंड डेटा एनालिसिस आप क्या करते हो, इस डेटा को एक्सप्लोर करते हो, एंड दैट इज नथिंग बट द ईडीए, एक्सप्लोरेटेड डेटा एनालिसिस, जो हम देख रहे हैं। और उसके बाद उसको फिर मशीन लर्निंग अप्लाई करना, एआई एमएल का यूज करके उसको डेटा को मीनिंगफुल और यूजफुल रिजल्ट्स देना, ये फिर हम धीरे धीरे सीखेंगे। बट नाउ वी आर हियर इन द थर्ड मॉड्यूल ऑफ ईडीए, एक्सप्लोरेटेड डेटा एनालिसिस हम सीख रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स डाइव प्रैक्टिकली लेट मी ओपन अवर VS कोड में ओपन करता हूँ एंड देन वी विल प्रैक्टिकली सी कि ईडीए में क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं, फिर मैक्स टू मैक्स उसको रिप्रेजेंट और जैसे ग्राफिकल कैसे एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। न्यू फाइल, लेट्स से जुपिटर नोटबुक, ओके। लेट मी सेव दिस फाइल। H2 EDA में लेट्स से EDA 1, EDA 1 करके आई एम जस्ट सेइंग एंड वी विल बी एक्सप्लोरिंग विद द एग्जांपल्स, ओके। All right. So very first thing, guys, what we do, we import the libraries, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे कोई बता सकता है हमको कौन सी लाइब्रेरीज की जरूरत लगेगी अभी, अगर एक्सप्लोर करना है डेटा को? यस गाइस, एनीवन? इंपोर्ट, Import numpy. ठीक है, ठीक है। पांडास, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड हमने देखा है पांडास इज द लाइब्रेरी फॉर एक्सप्लोरिंग द डेटा फ्रेम्स, ठीक है। तो पांडास एज पीडी में इंपोर्ट करता हूँ। व्हाट विल द नेक्स्ट इंपोर्ट? नमपाई रहेगा, राइट। नमपाई, नमपी, नमपाई जो आप बोलते हो, ठीक है, एज एनपी, ठीक है। ये दो तो हमेशा लगने वाली है, तो चलो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। जैसे बाकी की जैसे लगेगी वैसे उनको एक इंपोर्ट करेंगे, ठीक है, उनको इंपोर्ट करेंगे। तो लेट इट रन। तो देखो कर्नल इज रनिंग, सो कर्नल इंजन चल रहा है और लेट इट एग्जीक्यूट, ठीक है। हमने दो लाइब्रेरीज ले ली, ओके। तो वी विल बी नीडिंग अ डेटा सेट ना, तो लेट्स इंपोर्ट अ लाइब्रेरी। एक सीबॉर्न करके लाइब्रेरी है, उसमें मशीन लर्निंग के काफी अच्छे अच्छे एग्जांपल्स है और वहां पे डेटा भी हमको मिल जाता है। एसएनएस करके लाइब्रेरी, इंपोर्ट सीबॉर्न एज एसएनएस को हम इंपोर्ट करते हैं। चलो फिर से एग्जीक्यूट कर देता हूँ, ये पहले ही कर लेता, नीचे भी करता तो भी चलता, बट ओके, दिस इज जस्ट रिडंडेंसी कि मैं उन्हीं तीन कोड को फिर से एग्जीक्यूट कर दिया, इट्स ओके, ठीक है। बाद में अगर कुछ इंपोर्ट करना है तो आई विल ऐड इट इन अ नेक्स्ट सेल। दैट इज द ब्यूटी ऑफ आवर दिस नोटबुक, ठीक है। तो हमने लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर ली एंड एज आई सेड कि हमको डेटा रेफर करना है, बिकॉज प्रैक्टिकली अगर देखना है कैसे होता है, तो लेट्स टेक सम डेटा एंड ट्राई टू एक्सप्लोर दैट डेटा, ओके। तो डेटा रीड करने के लिए गाइस, इफ यू रिमेंबर, हमने जैसे कि डीएफ डेटा फ्रेम और व्हाट इज आवर सिंटैक्स, हम पीडी करते, राइट, पीडी डॉट रीड सीएसवी वगैरह वगैरह वगैरह। बट एज ऑफ नाउ लेट्स से वी आर रेफरिंग रेडी डेटा। तो लेट मी डू इट, लेट मी टेक इट फ्रॉम आवर सीबॉर्न, ठीक है। तो हमने एसएनएस को ऑलरेडी इंपोर्ट किया है, तो यहां से भी आप डेटा ले सकते हैं। लोड, यस, यू कैन टेक अ डेटा, सी लोड डेटा सेट इज अ फंक्शन, और and you can use there are number of available data set for learning purpose। तो मैं अभी टाइटैनिक को ले लेता हूँ, ठीक है। तो आई हैव टेकन अ टाइटैनिक डेटा सेट गाइस। इसके बाद कोई बता सकता है मुझे कि अगर मुझे इनिशियल रिकॉर्ड्स देखने हैं तो व्हाट फंक्शन आई कैन यूज, कौन सा फंक्शन में, अगर मुझे इनिशियल रिकॉर्ड्स देखने हैं, मतलब डेटा का फॉर्मेट देखना है, कॉलम्स के नाम देखने हैं, तो कौन सा मैं फंक्शन यूज करता हूँ? बिकॉज वी हैव लर्न df dot head. df dot, yes, df dot head हम यूज df करते dot हैं, head. Head. राइट। हेड, तो हेड से क्या होता है? यस, हेड से क्या होता है? डेटा फ्रेम, ये डेटा फ्रेम है, डीएफ इज डेटा फ्रेम, राइट। एंड वी हैव जस्ट, हमने क्या किया, एसएनएस के डेटा से हमने टाइटैनिक का डेटा लिया और डेटा फ्रेम को असाइन किया। तो अगर मैं डीएफ डॉट हेड करूंगा देन कितने रिकॉर्ड्स आएंगे? 15 First ना? file record. यस, इनिशियली 5 रिकॉर्ड्स आते हैं, ठीक है। तो ये डीएफ हेड है ना, इनिशियली आपको बाय डिफॉल्ट 5 रिकॉर्ड्स देता है।
अगर आपको ज्यादा लेने हैं तो यू कैन पास द वैल्यूज। सी अगर मुझे 20 रिकॉर्ड्स लेने हैं तो मैं 20 यहाँ पे ले सकता हूँ, ठीक है। बट बाय डिफॉल्ट ये देता है अपने को 5 रिकॉर्ड्स देता है डेटाबेस से, और आपको कॉलम्स के नाम वगैरह सब यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो डेटा सेट में हमको देखो सर्वाइव्ड, ये टाइटैनिक का डेटा है तो सर्वाइव्ड है, पैसेंजर क्लास है, सेक्स, एज, सिबलिंग्स, फिर पैसेंजर आर्च करके एक कॉलम है। इट्स ओके, वॉट एवर यू आर अंडरस्टैंडिंग, इट्स ओके, लाइक बिकॉज मशीन को भी ऐसे मीनिंग टू वर्ड मीनिंग उससे कुछ लेना देना नहीं रहता। मशीन अंडरस्टैंड इट ओनली इन टर्म्स ऑफ वो जो अपना मशीन लर्निंग का जो ये होता है, इसको वेक्टराइजेशन वगैरह उसमें, ओके। एंड एक्चुअली these data points are referred in a mathematical format, okay, so whatever the columns, but as a human you can understand कि भाई क्लास है, पैसेंजर क्लास है, थर्ड क्लास, फर्स्ट क्लास करके क्लासेस है, कौन है, मैन वुमन, जो भी उसका पैसेंजर का जेंडर है, वो एडल्ट है, डेक है, ये सब डेटा आपने को दिया है, ठीक है। तो ओके, अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको थोड़ा बहुत जितना भी उसका इसका नॉलेज आया होगा, इट्स ओके, बिकॉज एट द एंड वी आर एक्सप्लोरिंग, the reason why we are exploring is we will be making this data in a pre-process and clean way so that we can pass it to machine। इतना अंडरस्टैंड आप कीजिए, ठीक है। तो इनिशियल जो अगर आपको देखने हैं तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, मतलब आपको ये ईडीए करते टाइम क्या क्या देखना है ये आपको याद रहना चाहिए। तो व्हाट आई कैन राइट ओवर हियर कि यू कैन लुक इनटू इनिशियल, हाँ, इनिशियल, इनिशियल क्या कर सकते हैं हम, इनिशियल हम बोल सकते हैं कि इंस्पेक्शन बोल सकते हैं, इंस्पेक्शन, ठीक है। आप इनिशियल इंस्पेक्शन कर सकते हो और उसके लिए आप df डॉट हेड यूज करोगे। यहाँ पे भी मैं, चलो यहाँ पे भी लिख देता हूँ, मतलब जो स्टेप बाय स्टेप है मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या हम करते हैं, ठीक है। तो यू व्हाट यू डू, यू लोड द डेटा सेट। आप क्या करते हो, डेटा सेट को लोड करते हो, ठीक है, लोड डेटा सेट। उसके बाद इनिशियल इंस्पेक्शन में ये ऐसे भी कर सकता हूँ, इसको उठा के ऊपर भी लिख सकता हूँ, दैट इज टोटली डिपेंड हाउ प्रॉपरली यू आर फ्रेमिंग दिस नोटबुक। बिकॉज लेट से अगर आपको डेटा एनालिसिस का काम मिल गया तो आपको क्या होता है, आपके हायर डिपार्टमेंट को, मैनेजमेंट को, जो भी आपको मैनेजर है जो, तो उनको एक प्रॉपर प्रिपेयर्ड एक फाइल देनी पड़ती है जिसमें प्रॉपर ईडीए किया हुआ रहता है। एंड इट इट लीड्स टू द कंक्लूजन कि भाई डेटा क्या है, ठीक है। तो एट दिस मोमेंट, यहाँ इस स्टेज में आप एज अ डेटा एनालिस्ट समझो खुद को और ट्राई टू एक्सप्लोर द थिंग्स, ठीक है। तो पावर बीआई वगैरह वो जो चीजें हमने बोली थी, तो इन बैकग्राउंड में यही चीजें एग्जीक्यूट होती है, सिर्फ वहां पे बटन दिए होते हैं, बटन को क्लिक किया और ये एग्जीक्यूट हो, ठीक है। तो हेड आपको समझ गया, यू अंडरस्टूड, इन इनिशियल इंस्पेक्शन आपका हो गया, ठीक है। इसको एक्सप्लोरेशन में अगर मैं नेक्स्ट चीज बोलूं तो क्या कर सकते हैं अभी नेक्स्ट इसमें, नल वैल्यूज के लिए हम जा सकते हैं, नल वैल्यूज देख सकते हैं। बट बिफोर दैट अगर हमको देखना है कि भाई ये जो कॉलम्स है उनका टाइप्स क्या है, क्या उनका डेटा टाइप है, न्यूमेरिक है, इंटीजर है, और इंफॉर्मेशन क्या है, तो व्हाट वी रेफर, हम क्या रेफर करते हैं, एक फंक्शन है अपना। यस गाइस, व्हाट इज दैट फंक्शन, अगर इंफॉर्मेशन देखनी है तो, यस गाइस, info। इन्फो करके है, ठीक है। इन्फो से आपको काफी सारा डेटा का बिहेवियर मिल जाएगा, नल है, नॉट नल है, उसका डेटा टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है ना, और उसमें कितना आपका रिकॉर्ड्स है, रिकॉर्ड्स देखना है, अगर टोटल उसका साइज देखना है, शेप देखना है, तो व्हाट इज द फंक्शन गाइस, व्हाट इज द फंक्शन नेम। अगर मुझे इसका टोटल रिकॉर्ड्स कितने और शेप देखना है तो व्हाट आई कैन यूज द फंक्शन, विच फंक्शन आई कैन यूज, Shape dot shape। शेप, ठीक है। शेप का अगर मैं यूज करूंगा तो यू विल सी द टोटल रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पे देखो टोटल रिकॉर्ड्स, तो टोटल रोज कितने हैं, 891, और टोटल कॉलम्स है अपने 14, राइट। तो सी 891, 891, यहाँ पे आपको आपको दिखेगा कि एज के जो रिकॉर्ड्स है वो 714 है। इसका मतलब क्या, टोटल रिकॉर्ड्स में से अगर आप 714 माइनस करोगे तो बचा हुआ जो डेटा है ना वो इसको मिला ही नहीं, मतलब मिसिंग है वो डेटा, तो उसको हम नल भी बोल सकते हैं, राइट, राइट गाइस। सो दीज आर द थिंग्स। एंड यहाँ पे डेक को देखो 891 थे और डेक में सिर्फ 203 रिकॉर्ड है, तो देर इज लॉट ऑफ मिसिंग डेटा ओवर हियर। तो इसके इसको एनालाइज करके आप ये भी सोच सकते हो कि इंपॉर्टेंट फीचर्स कौन से हम कैरी ऑन करेंगे और किस किस फीचर्स को हम ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन यू कैन कंक्लूड और यू कैन डिराइव द कंक्लूजन, ठीक है। Finally, we will be doing this based on some graphical representation of data. Okay, and we will conclude कि क्या हुआ था, कैसा है, क्या लेके जाना है, कितना है, इसका अंडरस्टैंडिंग क्या है डेटा का, ठीक है। नाउ अगर मैं आपको इसमें मीन, मोड और मीडियन ये अगर हमको जानना है
तो व्हाट यू कैन डू, डेटा का मीन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, मीडियन क्या है, मोड क्या है, तो describe, df डॉट describe. डिस्क्राइब करके फंक्शन है, इट गिव्स अस द प्रॉपर अंडर लाइक मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग। तो देखो परसेंटाइल जो हमने कल डिस्कस लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, परसेंटाइल वी डिस्कस्ड, मैक्स वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है, एंड देन काउंट, काउंट से आपको पता चल जाता है कि भाई टोटल रिकॉर्ड्स कितने, सी फॉर एज आई सेड कि सम रिकॉर्ड्स आर मिसिंग इन एज कॉलम मीन, सो ईच कॉलम का मीन, कॉलम वैल्यूज का मीन कैलकुलेट हुआ है, दैट इज गुड। स्टैंडर्ड डेविएशन, सो स्टैंडर्ड डेविएशन से मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन किया था लास्ट टू लास्ट सेशन कि वन स्टैंडर्ड डेविएशन, टू स्टैंडर्ड, द स्प्रेड ऑफ अ डेटा वी कैन अंडरस्टैंड यूजिंग यूजिंग दिस स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। मिनिमम पता चला परसेंटाइल है, सो दिस डिस्क्राइब इट जनरली गिव्स अस द आइडिया। अगर आपको नल और नैन भी देखना है तो यू कैन डू दिस थिंग, इंक्लूड ऑल अगर आप करोगे तो यू विल गेट सम एडिशनल डेटा कि भाई कहाँ कहाँ पे नैन वैल्यूज थे, यूनिक कितना था, यूनिक में कितने यूनिक वैल्यूज है, मतलब एम्बार्क में अगर यू कैन कंसिडर, ये क्लास में क्या है, पैसेंजर क्लास, कौन से फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास, तो तीन ही कैटेगरिकल डेटा है यहाँ पे। हाँ, तो एक्चुअली आपको कैटेगरिकल डेटा में प्रॉपर वैल्यूज आपको मिलेगी, ठीक है। जैसे कि एडल्ट मेल में देखो ये ट्रू और फॉल्स करके डेटा है, तो दो कैटेगरीज है, ठीक है। सो यू कैन डू दिस ऑल्सो, यू कैन पास द ऑल एंड यू विल गेट द मैक्सिमम ऑफ आउट ऑफ इट द अंडरस्टैंडिंग, ओके। बट जनरली डिस्क्राइब से पता चल जाता है कि भाई कैसा उसका, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग डिस्क्राइब से क्या पता चलता है, बताया आपको कि न्यूमेरिकल डेटा का बिहेवियर कैसा है और कौन से कॉलम्स है जो न्यूमेरिकल है, एंड ये कॉलम मशीन लर्निंग के लिए आर हाईएस्ट प्रायोरिटी, मतलब अच्छे से अंडरस्टैंडिंग के लिए वी कैन रेफर दिस कॉलम्स, सो दैट इज द वी कैन से इंपॉर्टेंस ऑफ द दिस डिस्क्राइब फंक्शन। इफ आई वॉन्ट टू चेक, इफ आई वॉन्ट टू चेक, मैं यहाँ पे वो सब डिस्क्रिप्शन वगैरह वो भी लिख सकता था, बट लाइक फॉर टाइम बीइंग आई एम जस्ट स्कीपिंग इट, और इफ यू वांट आई विल राइट इट ऑल्सो। चलो मैं ऐसे हैश दे के लिख देता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे मार्क डाउन करके लिखता हूँ, ठीक है ना, मार्क डाउन करके, ठीक है। अगर मेरे को, इफ आई वॉन्ट टू, इफ आई वॉन्ट टू सी के व्हाट आर द नल वैल्यूज, मिसिंग वैल्यूज, हाँ, सो इफ आई एम राइटिंग हियर चेक फॉर द मिसिंग वैल्यूज, चेक फॉर द मिसिंग वैल्यूज, ठीक है। तो अब मिसिंग वैल्यूज को चेक करना है, यस गाइस, व्हाट इज द फंक्शन मिसिंग वैल्यूज, कैसे करेंगे हम, बिकॉज दिस फंक्शन जो इनिशियल लेवल पे जो मैं आपको पूछ रहा हूं ना, बिकॉज यू नो इट, जस्ट प्रैक्टिस हो रही, आगे जब जाएंगे, आगे जब डिफरेंट जैसे बॉक्स प्लॉट फाइंड करना, आउटलायर फाइंड करना, तो उस टाइम पे आई विल टेक, बट राइट नाउ आई एम जस्ट आस्किंग टू यू, जस्ट आपका रिकैप और रिवीजन हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। सो टू फाइंड द मिसिंग वैल्यूज, डू यू नो द Is फंक्शन, N, is N. यस, इज नल करके ना, इज नल, इज नल करके अगर आप Is NA पे होता है ना? is na, yes, is na, yes, is na you can use, but generally if you want to refer in entire data set ना, use this is null, ठीक है। देखो सम भी आ गया, अगर सिर्फ is null करते हो तो what you find, आपको ऐसा दिखेगा, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ये सब दिखेगा, बट ये ट्रू फॉल्स से इतना पता नहीं चलता, लेकिन अगर आप सम करोगे तो आपको कॉलम वाइज मिलेगा डेटा, कॉलम वाइज, तो कॉलम वाइज में पता चल जाएगा कि भाई पैसेंजर क्लास में नल वैल्यू है नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये एज क्लास में जैसे मैंने बोला कि मिसिंग वैल्यूज है, तो मिसिंग वैल्यूज कितनी है यहाँ पे पता चल रहा है, देखो टोटल रिकॉर्ड्स वी हैड, टोटल रिकॉर्ड्स एज 891, ओके, एंड इन द दिस पैसेंजर क्लास में 891, मतलब टोटल 891 रिकॉर्ड्स प्रेजेंट है, बट एज एज का जो कॉलम है उसमें 177 रिकॉर्ड्स मिसिंग है, डेक में तो 688 रिकॉर्ड मिसिंग है, तो आपको देखना है कि भाई ये डेक कॉलम की जरूरत है क्या, उसको ड्रॉप भी कर सकते हैं, डू वी रियली नीड दिस डेक कॉलम, बिकॉज मैक्सिमम डेटा इज मिसिंग, तो ऐसा मिसिंग डेटा देके कुछ फायदा नहीं, तो यू कैन डायरेक्टली ड्रॉप दिस कॉलम, ठीक है। लेकिन एज के बारे में फिर व्हाट यू कैन डू, अगर एज का 177 रिकॉर्ड्स जो आपको ड्रॉप करना है, या फिर इस डेटा को फिल करना है ताकि ये मिसिंग डेटा फिल हो जाए और कुछ तो वैल्यू मिले, सो टोटली डिपेंड, आपका बिजनेस जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो क्या है, उस पे ये सब डिपेंड है कि आप कैसे डील करते हो मिसिंग वैल्यूज रिकॉर्ड्स के लिए। तो गाइज लेट्स डिस्कस मोर ऑन दिस, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ यू हैंडल द मिसिंग वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल अगर एंटायर डेटा अगर अपना 5 लाख या 10 लाख डेटा रहता, उसमें से अगर 50 या लेट से 100 कॉलम से लेट से मेल फीमेल का डेटा है, ओके, और बाय मिस्टेक किसी ने उसको एंटर नहीं किया और वो छूट गया, बाकी का डेटा उसके रिगार्डिंग बाकी का डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस दिस ये मिस्टेक जो भी है एम्प्टी रह गया,
तो आप क्या पूरा एंटायर कॉलम मतलब पूरा एंटायर डेटा ड्रॉप अगर करोगे, लेट्स से इफ इट इज 20 रिकॉर्ड्स, तो 5 लाख में 20 अगर ड्रॉप करते हो तो देर इज नो मतलब देर इज नो एनी प्रॉब्लम ना। अगर 5 लाख में लेट्स से 2 लाख का डेटा जिसमें बाय मिस्टेक मेल फीमेल का डेटा एंटर नहीं हुआ बिकॉज ऑफ द वैलिडेशन जो भी सेट किए थे वो चले नहीं और एक एम्प्टी वैल्यूज आ गई, तो अभी इस 2 लाख का कैसे हैंडल करेंगे? तो दैट इज टोटली योर स्ट्रैटेजी। आपकी कौन सी स्ट्रैटेजी है? मैंने मेल फीमेल का एग्जांपल दिया, बट मे बी इट कैन यू कैन थिंक अबाउट सम इंपॉर्टेंट कॉलम नेम एंड विच इज मिस्ड, वो मिस्ड हो गया। तो फिर देर आर सो मेनी स्ट्रैटेजीज। एक तो फिर मेजोरिटी, एक तो फिर हमने जैसे स्टैटिस्टिक्स की प्रोबेबिलिटी सीखी ना, हमने प्रोबेबिलिटी वैल्यू सीखी कि भाई क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि ये डेटा ये वाला हो। मतलब ये मेल फीमेल का मैं एग्जांपल दे रहा हूं, बट इट कैन बी एनी इंपॉर्टेंट डेटा गाइस। वो अगर मिस हो गया तो फिर आप क्या करोगे? क्या हर एक कस्टमर को जाके बोलोगे भाई तूने ये डेटा मिस कर दिया? मतलब देर आर नंबर ऑफ स्ट्रेटेजीज। होता भी है कि भाई कस्टमर अगर आएगा वो उसको एक पॉपुलेट कर दो कि भाई तेरा ये इंफॉर्मेशन डाल ना, बट इट इज जरूरी नहीं कि हर कस्टमर वो करेगा। वो बोलेगा कि यार मैंने तो दिया है ऑलरेडी, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो ये आपके लेवल पे डील करना है तो यू कैन यूज प्रोबेबिलिटीज। तो हमने वो जो देखा था ना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इफ दिस वैल्यू इज दिस, कैसे हो सकता है, तो उसके हिसाब से आप उसको रिप्लेस कर सकते हो। तो दैट इज वन थिंग, रिप्लेसिंग इज द वन थिंग। तो दिस कम्स अंडर दिस प्री प्रोसेसिंग वाला पार्ट है, एंड प्रैक्टिकली उसको देखने वाले हम आगे जाके। सो दिस आर द थिंग्स गाइस। अभी तो अभी के लिए आप ऐसे समझो कि नल कैसे, नल वैल्यू कैसे फाइंड आउट होती है, एंड दीज आर द फंक्शंस। ठीक है, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट फंक्शन। लाइक दिस आर द बेसिक फंक्शन। मैंने जैसे बोला कि ये बेसिक फंक्शन है, आपको हमेशा इसको यूज करना है प्रैक्टिकली। ठीक है, प्रैक्टिकली इसको यूज करना है। लेट्स से अगर मैं इसका थोड़ा प्लॉटिंग करता हूं, ठीक है, ये बाद में हम प्री प्रोसेसिंग जब करेंगे ना, तब ये नल वैल्यूज को फिल कैसे करते हैं, फिलना, वो जैसे इजना बोला वैसे फिलना भी होता है, उसमें क्या डालना, कौन सी वैल्यू डालना, वन हॉट एनकोडिंग, ये सब देखेंगे हम आगे। बट अभी हमारा जो इनिशियल वे है, तो लेट्स से इसका इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इस डेटा को, तो उसके लिए हमको लगेंगे प्लॉट्स। तो प्लॉट्स अगर लगेंगे तो लेट्स से मैं इंपोर्ट करता हूँ कुछ लाइब्रेरीज। ठीक है, आप लाइब्रेरीज को यहाँ पे भी इंपोर्ट कर सकते हो, या फिर एक प्रॉपर वे से, जैसे मैंने बोला आपको मैनेज करना है प्रॉपर वे से, तो यू कैन इंपोर्ट हियर एज वेल, और वहां पे भी आप कर सकते थे। तो अगर आपको दिखाना है तो एस एन एस वी हैव टेकन मैटप्लॉटलिब करके इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी। इंपोर्ट इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब। ये मैटप्लॉटलिब जैसे हमने आई थिंक कि हमने लास्ट सेशन में भी इसको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखने के लिए आई हैव इंपोर्टेड दिस लाइब्रेरी, इफ यू रिमेंबर, इफ यू रिमेंबर आवर अर्लियर सेशंस। ठीक है, तो मे बी लाइक आप रिकॉल कीजिए एंड प्रैक्टिस कीजिए। आई होप के यू आर डूइंग इनफ प्रैक्टिस टू अंडरस्टैंड दिस थिंग गाइज, बिकॉज हम यहाँ पे अभी काफी सारे ग्राफ्स और काफी सारे अलग अलग वेज से रिप्रेजेंट करने वाले डेटा को, ठीक है, अंडरस्टैंड करने वाले। ठीक है, तो हमने मैटप्लॉटलिब की अगर लाइब्रेरी इंपोर्ट की है, तो लेट्स यूज दैट फंक्शन टू लेट्स से, अगर यूनिवेरिएट हम एनालिसिस करते हैं, यूनिवेरिएट एनालिसिस। ठीक है, इफ आई एम सेइंग कि यूनिवेरिएट एनालिसिस, तो यूनिवेरिएट एनालिसिस क्या होता है? uh, कोई बता सकता है यूनिवेरिएट एनालिसिस मतलब? मैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू रेफर हियर, यूनिवेरिएट एनालिसिस क्या हो सकता है मतलब? एनालिसिस, यस गाइस, यूनिवेरिएट एनालिसिस से मैं क्या यहाँ पे बताने वाला हूँ? यूनिवेरिएट, यूनिवेरिएट का स्पेलिंग थोड़ा सा, यस गाइस, एनी आइडिया व्हाट दिस कुड बी? यूनिवेरिएट मतलब क्या? वेरिएट मतलब कुछ रिलेशन आप लगा पाते हो? वेरिएट मतलब क्या, कुछ किस चीज के लिए मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ? आई एम एक्सप्लोरिंग यूनिवेरिएट, यस, एनी आइडिया? कोई तो एक ही खेल का कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ, मतलब कोई तो एक डेटा के वेरिएबल्स, ऊपर ये सब फोकस क्या है? ये कर। वेरिएबल्स है। सर्वाइव्ड, पैसेंजर क्लास, हाँ। ये वेरिएबल्स है, बराबर। तो यूनिवेरिएट मतलब क्या? एक वेरिएबल को लेके उसको एनालिसिस करो, उसका एनालाइज करो कि भाई वो वेरिएबल एंटायर डेटा पे कैसे इंपैक्ट कर रहा है। बस उसको अगर एनालिसिस करना है तो दैट इज नथिंग बट यूर यूनिवेरिएट एनालिसिस। तो उसके बाद फिर क्या हो सकता है? बायवेरिएट एनालिसिस, मतलब दो वेरिएबल्स को एक साथ देखो एंड उसको एनालाइज करो। एनालाइज इसलिए करो कि उसका इंपैक्ट ऑन एंटायर पॉपुलेशन, एंटायर डेटा सेट, और अगर मैं बाय वेरिएट करता हूं तो उनका एक दूसरे से क्या रिलेशन है, जैसे हमने रिलेशन कॉजेशन देखा था, देखो को रिलेशन कॉजेशन, राइट? ओके, सो लेट्स डू यूनिवेरिएट एनालिसिस। तो यूनिवेरिएट एनालिसिस, लेट्स से आई एम प्लॉटिंग अ फिगर ना, मैं अगर ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आई एम टॉकिंग अबाउट ना, ठीक है, फिगर, यस, ये वाला फंक्शन फिगर। ठीक है, देखो यहाँ पे आ गया।
ओके, फिगर की साइज है 10 6, यू कैन टेक इट बाय डिफॉल्ट। एसएनएस हमने लिया है एसएनएस का, राइट। तो एसएनएस इज द सी बॉन्ड लाइब्रेरी विच इज यूज टू, या यू कैन, आप हिस्टोग्राम आप ले सकते हो। लेट्स से अगर हम एक वेरिएबल लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमने लिया एज, बिकॉज एज का डेटा कुछ मिसिंग है ना, देखो ड्रॉप ना है, ड्रॉप नल कर सकते हो आप उनको। अगर मैं एज को एक्सप्लोर करता हूँ ऐसे ग्राफिकल, हम ग्राफिकली देखेंगे कि भाई एज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, बिकॉज एज आई सेड कि डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, अभी के लिए लेट मी डू दिस, फिर उसके बाद व्हाट वी कैन डू, कर्नल डेंसिटी एस्टिमेशन हम ऐड कर सकते हैं। इफ यू रिमेंबर केडी मैंने बताया था आपको, केडी करके रहता है ट्रू। हाँ, ट्रू और बीन्स आप दे सकते हो, कितने बीन्स, बीन्स इन द सेंस कि टोटल कितने नंबर्स ऑफ, आप जो भी एक्स और वाई ग्राफ में जो डेंसिटी के लिए बीन्स दोगे ना, तो उससे पता चलेगा भाई डेंसिटी क्या है। मतलब एज में, लेट से एज अगर अपना 20 या लेट से 5 ईयर से अगर 70 ईयर तक डिस्ट्रीब्यूशन है, तो एज में कौन सा एरिया है जहां पे ज्यादा है, मतलब लाइक 20 से 30 ईयर के जो एज के जो लेट से पैसेंजर्स है वो ज्यादा है क्या, तो उससे हमको पता चलेगा। तो दैट इज योर यूनिवेरिएट एनालिसिस, उसका डेंसिटी उसको आपको पता चलेगा। ठीक है, तो टाइटल देना है, टाइटल आप दे सकते हो। ठीक है, टाइटल दे सकते हो आप, लेट से जो भी आपको देना है। इफ यू आर एक्सप्लोरिंग एज, तो एज 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 करके दे दो, एज डिस्ट्रीब्यूशन करके बोलो, एज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, राइट। और फाइनली क्या करो, उसको प्लॉट को शो करो, जस्ट आपको अंदाजा आएगा कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है उसका। ठीक है, सी द स्क्यूनेस, और इवन व्हाट वी कैन डू, अगर इसको बेटर वे से, लेट से अगर कुछ फर्क गिरता है तो, हाँ, अगर मैं बोलूंगा पीडी डॉट, लेट से मैं कुछ ऑप्शन सेट करता हूँ यहाँ पे, मतलब ग्राफ को एक प्रॉपर वे से डिस्प्ले अगर करना है, यू कैन डू दिस, दिस इज जस्ट ऑप्शनल गाइस। इसको करना नहीं करना, यू कैन जस्ट थिंक लाइक आपकी मर्जी, बट लेट से अगर आपको प्रॉपर प्रिपेयर करना है आपके इसको, मैक्स मैक्स कॉलम्स, कितना उसका विड्थ हो सकता है, वी कैन डिफाइन हियर। ठीक है, लेट्स से इफ वी प्रोवाइड नर कि भाई कुछ नहीं, और उसका अगर स्टाइल सेट करना है हमको, यू कैन इवन इसको, हाँ ये देखो ये वाला। ठीक है, कौन से इसमें व्हाइट ग्रिड है, ब्लैक ग्रिड है, यू कैन यूटिलाइज। ठीक है, यू कैन डू दिस, एंड लेट्स से अगर कुछ फर्क गिरता है यहाँ पे, हाँ देखो ये बेस, और ये थोड़ा सा यहाँ पे ये बैकग्राउंड में ये प्रॉपर आपको रिलेट हो पाए, ये सेल्स वगैरह जो दिख रहे हैं ना, स्क्वायर। ठीक है, तो बट द थिंग इज गाइस, यहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हो, देखो 0 से 10, ये डेंस, ये जो है केडी है यहाँ, ये जो आपको दिख रहा है लाइन, दैट इज केडी। अगर मैं केडी निकाल देता हूँ, केडी अगर मैं निकालता हूँ, देन यू विल सी वो निकल गया। बट द डेंसिटी को एक प्रॉपर वे से अगर आपको दिखाना है या एनालाइज करना है, तो यू कैन कीप द केरी ऑन। ठीक है, ये सब रिवीजन है गाइस, बिकॉज हमने ये प्रीवियस सेशन में थोड़ा सा देखा था इसको, बट आई होप कि यू अंडरस्टैंड। मैंने आपको डेंसिटी वगैरह ये सब चीजों के बारे में डिस्कस भी किया था। सो नाउ यू कैन कंक्लूड कि भाई द डेंसिटी ऑफ एज, द स्प्रेड ऑफ एज, फर्स्ट ऑफ ऑल एज का जो स्प्रेड है दैट इज नॉट इन अ बैलेंस, वेल बैलेंस शेप, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो 0 से 10 ईयर्स के जो थे, उसके बाद 11 ईयर्स तक का जो है वेरी लेस, बट यहां से लेके यू कैन सी द स्प्रेड, द डेंसिटी अप टू 40, दिस इज लाइक द हाई डेंस जो भी स्प्रेड है एज डेटा का, यू कैन अंडरस्टैंड इट इज फ्रॉम 12 से लेके 40 तक इज गुड। एंड इवन 20 एज के जो है, लाइक 20 और 20 से लेके 30 तक, यू कैन सी द मैक्सिमम, यहाँ पे हीप देखो, ये हीप है, तो मैक्सिमम डेंसिटी यू विल फाइंड ओवर हियर। ठीक है, ये रीजन में, ये आप कस्टमर के लिए, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जो भी रहते ना बायर्स वगैरह, उसके लिए यू कैन एक्सप्लोर इन दिस वे। और अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपको डेटा का एक्सेस है, इवन यू कैन थिंक इन दैट वे, आप आपके डेटा जो भी है उसको भी लेके आप कर सकते हो, सीएसवी डेटा लेके। हाँ, देर आर डिफरेंट वेज यू कैन एक्सप्लोर। So this kind of representation you can apply. Let's say अगर if you want to do the same thing, और we can say चलो अपने पास ये जेंडर का है ना, ये इसका जेंडर, जेंडर इन द सेंस वी हैव दिस सेक्स ना, सेक्स का डेटा अच्छे से अवेलेबल है, नॉट जेंडर बट सेक्स। ओके, सो लेट्स सी कि भाई जेंडर, ये सेक्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और उसका कैसा बिहेवियर है, बिकॉज एट द एंड व्हाट वी आर डूइंग, वी आर trying to understand the behavior of each and every variable, and that's why it is called the univariate
एनालिसिस, ठीक है। तो ये जो था ये अपना कंटिन्यूअस वेरिएबल्स थे एज के ना, कंटिन्यूअस, और आपको पता है ना कंटिन्यूअस डिस्क्रीट डिस्क्रीट वैल्यूज, तो दिस आर द डिस्क्रीट वैल्यूज, डिस्क्रीट कंटिन्यूअस डेटा वी हैव सीन। चलो कैटेगरिकल डेटा देखना है, बिकॉज वी नो मेल और फीमेल करके है ना अपना सेक्स डेटा में, तो कैटेगरिकल डेटा को अगर एक्सप्लोर करना है इन इन टर्म्स ऑफ ग्राफ, तो हाउ वी कैन डू इट। तो आई एम लेट्स, मैं कॉपी पेस्ट मारता हूँ इसको ना, मतलब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज फॉर टाइम बीइंग ना, लेट मी जस्ट मूव इट फास्ट, बिकॉज वॉट एवर वी आर डूइंग ना, वी आर डूइंग सम वी कैन से रिवीजन काइंड ऑफ। तो अगर मैं यहाँ पे इफ आई यूज देखो काउंट प्लॉट करके, ठीक है, काउंट प्लॉट, और मैं यहाँ पे अगर आपको बोलूंगा कि काउंट प्लॉट में वी कैन यूज इन दिस वे, एक्स एक्स एक्सिस देना पड़ता है हमको काउंट प्लॉट, और एज नहीं देना हमको, हमको देना है ये वाला सर्वर में। One second, yes. We are exploring for six, right? ठीक है, और डेटा वी कैन प्रोवाइड द डेटा, डेटा इज आवर डीएफ, ओके। एंड व्हाट एल्स, ठीक है, चलो यहाँ इतना करते हैं, और लेट्स सी, ऐसे दिख रहा है ना, इफ आई आई ऐड वन मोर पैरामीटर, लेट्स से, हाँ ये पैलेट कर, अच्छा क्या हो गया इसको, पैलेट, डेट, सेट, पैलेट, डबल टी है क्या, मे बी या पैलेट का स्पेलिंग से, okay. What is missing over here? SNS count plot. Six is the developer palette. Oh, okay, okay. See, S should be capital actually. S should be capital. मैंने small दिया था. That because that is parameter ना. And ये आ रही है warning. अच्छा यहाँ पे आएगा आपका सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन, आप बोल सकते हैं, या काउंट प्लॉट, सेक्स काउंट प्लॉट, जो भी आपको देना, या जेंडर काउंट, यू कैन से दिस इज वार्निंग, हाँ गाइस, वार्निंग इज व्हाट पैलेट विदाउट असाइनिंग यूज, ठीक है, इट्स ओके। मैं इवन मैं अगर इसको भी निकाल दूंगा, बिकॉज उसमें फिर पैलेट के साथ एक ह्यू करके हम पैरामीटर दे सकते हैं, बट इट्स पैलेट इसलिए आ रहा था, वो कलर कलर पैलेट मिल रहे थे ना आपको डिफरेंट, बट इवन यू कैन रिप्रेजेंट बाय दिस वे, और यू कैन एक्सप्लोर कि उसमें कैसे आप एडिशनल डाल सकते हो। तो दिस इज द एक्सप्लोरेशन अबाउट द आपका जो क्लासिक कैटेगरिकल डेटा है, तो ये कैटेगरिकल डेटा था, एंड देन यू कैन सी द स्प्रेड कि भाई फीमेल का काउंट कितना है 300, एंड मेल का काउंट है मोर देन 500, और यू कैन से नियर टू 600। सो दिस काइंड ऑफ यूनिवेरिएट एनालिसिस in terms of classical like categorical and in terms of this continuous variables, उसके बारे में you can do the graphical representation। हाँ, अगर मुझे बाइवेरिएट एनालिसिस करना है, बाइवेरिएट, if I want to do the bivariate analysis, बाइवेरिएट एनालिसिस, ठीक है, बाइवेरिएट एनालिसिस अगर आपको देखना है, इसका मतलब क्या, बाइवेरिएट में ऑब्वियसली व्हाट आई विल बी नीडिंग, यस गाइस, व्हाट आई विल बी नीडिंग, बाइवेरिएट में मुझे क्या लगेगा, चलो मैं इसको कॉपी करता हूँ, यस एनी आइडिया बाइवेरिएट में क्या लगेगा, ऑब्वियसली दो वेरिएबल्स लगेंगे, करेक्ट, अगर मुझको, एंड Yes. व्हाई वी आर डूइंग बाइवेरिएट, बिकॉज एज आई सेड कि आपको पैटर्न्स फाइंडिंग करना है, बिकॉज बाइवेरिएट के बाद मल्टीवेरिएट भी आता है, एंड यू हैव टू फाइंड द पैटर्न्स, तो पैटर्न्स, हिडन पैटर्न्स, रिलेशन, को रिलेशन एंड कॉजेशन, which I ask you to do that, right? So these are the things you can do. So in bivariate analysis, what the things you can do, तो आपको फिर दो वेरिएबल्स लगेंगे, ठीक है। लेट्स से अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे, अगर लेट्स से बॉक्स प्लॉट, तो हमने बॉक्स प्लॉट को एक्सप्लोर किया था लास्ट टाइम, एंड यूजिंग दिस बॉक्स प्लॉट यू विल बी एबल टू फिगर इट आउट कि भाई बॉक्स प्लॉट के को लेके फिर वी विल एक्सप्लोर मोर ऑन बॉक्स प्लॉट के विस्कर क्या होता है, क्वार्टाइल क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन क्या, क्वार्टाइल वन, क्वार्टाइल टू, ईच एंड एवरीथिंग वी विल डिस्कस, बट लेट्स से हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द डेटा यूजिंग बॉक्स प्लॉट।
तो बॉक्स प्लॉट में अगर मैं मेरे को देखना है बाइवेरिएट एनालिसिस में, तो आई कैन टेक, लेट्स से अगर मैं डेटा लेता हूँ एक्स का, बिकॉज एक्स और वाई एक्सिस हमको देना होगा, ठीक है। एज तो हमने देख लिया है। सर्वाइव्ड और एज अगर देखेंगे तो लेट्स से अगर मैं इसको लेता हूँ एज, हाँ, एज लेता हूँ और उसके साथ सर्वाइव वाला डेटा देते हो तो वाई भी लगेगा हमको, ठीक है, वाई भी लगेगा। और वाई के साथ लेट्स से सर्वाइव को, सर्वाइव वाला लेते हैं फिर, मतलब जो सर्वाइवल रेट है इन टर्म्स ऑफ सर्वाइव करके था ना, सर्वाइव्ड, हाँ, सर्वाइव्ड, ठीक है, सर्वाइव्ड। सो बाय डूइंग दिस व्हाट विल बी फाइंडिंग कि भाई सर्वाइवल रेट कैसा है एज के हिसाब से, ठीक है, एज डिस्ट्रीब्यूशन, एज वर्सेस सर्वाइवल सी आ गया। तो लेट्स एक्सप्लोर दिस इन अ बाइवेरिएट फॉर्मेट, और बॉक्स प्लॉट हम देख रहे हैं, ठीक है। ओके, तो बॉक्स प्लॉट में दिस इज नॉट गिविंग अस गुड आइडिया। अगर लेट्स से अगर आपको ऐसा कुछ दिखता है तो वन थिंग यू कैन डू, अगर इसको स्विच मार दोगे, मतलब अगर मैं इसको y कर दूं और इसको अगर x कर दूं, तो लेट्स सी क्या होता है। हाँ सी, देखा, वाई, बिकॉज यहाँ पे जो ग्राफिकल वे से एक्स वाले में ना, एक्स वाले में एज कंपेयर टू वाई द डेटा वाज नॉट प्रॉपरली स्प्रेड, सो हमने जस्ट स्विच कर दिया इसको एक्स और वाई, एंड यू कैन सी द डिफरेंस कि हाउ द बॉक्स प्लॉट इज नाउ लुकिंग। और इस बॉक्स प्लॉट में गाइस, as we have already discussed about the outliers, so you can easily find these are the outliers, these are the outliers, ठीक है, these are the outliers, and the data spread you can see 20 and 40, the range of spread of data, and this is our quartile 1 quartile 2, and as I said कि मैं बॉक्स प्लॉट के बारे में हम कागज पेन आपको भी मैं बताऊंगा और प्रॉपर वे से बॉक्स प्लॉट को सीखेंगे, एंड प्रैक्टिकल मैं आपको कैलकुलेशंस बताऊंगा मैथ्स के, एंड दोज आर द सिंपल एंड इजी कैलकुलेशन गाइस, बट जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग बॉक्स प्लॉट, बिकॉज बॉक्स प्लॉट का हमको यूज होता है इन टर्म्स फॉर अंडरस्टैंडिंग द स्प्रेड ऑफ डेटा इन फाइंडिंग द आउटलायर्स, बिकॉज जैसे मैंने बोला कि आउटलायर्स को डिटेक्ट करना और रिमूव करना इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर इनके साथ अगर मशीन को देंगे तो बायस्ड जो होता है ना, बायस्ड एंड वेरिएंस, वेरिएंस ज्यादा आता है इन्फरेंस में, ठीक है, एंड फॉर दैट रीजन वी आइडेंटिफाई एंड वी रिमूव द आउटलायर्स एंड इवन वी मैनिपुलेट द आउटलायर्स, मतलब आउटलायर्स को हम अपने डेटा में, प्रॉपर डेटा में, इन अ नॉर्मल स्प्रेड डेटा में, लाइक एज आई सेड 3 स्टैंडर्ड डिवीजन तक उसको इंक्लूड कर लेते हैं। सो फॉर दैट रीजन वी यूज द स्टैंडर्ड स्केलर, जो जेड स्कोर मैंने लास्ट टाइम बताया था, बट प्रैक्टिकली यहाँ पे भी हम देखेंगे कि आउटलायर को कैसे रिमूव करके अपने डेटा में लेते हैं, ठीक है। बट एज ऑफ नाउ वी आर जस्ट एक्सप्लोरिंग यूनिवेरिएट एनालिसिस, बाइवेरिएट एनालिसिस, ठीक है। तो in this way you can explore, and there are other let's say heat map अगर मैं निकालता हूँ, ठीक है, एंड हीट मैप अगर मैं निकालूंगा तो इट विल बी काइंड ऑफ मल्टीवेरिएट एनालिसिस। तो चलो लेट्स गो विथ हीट मैप, एंड एज आई सेड कि यू कैन इवन एक्सप्लोर मोर ऑन दैट। चलो हीट मैप देखते हैं हम, मल्टीवेरिएट एनालिसिस वी कैन से, और लेट्स फाइंड द कोरिलेशंस बिटवीन डेटा पॉइंट्स, ठीक है, डेटा पॉइंट्स यूजिंग यूजिंग और एक्सप्लोरिंग द न्यूमेरिकल फीचर्स, और वी कैन से हीट मैप, ठीक है। चलो देखते हैं। तो हीट मैप से आपको मैंने लास्ट टाइम में भी हीट मैप आपको निकाल के दिखाया था इन आवर लास्ट सेशन, और उससे मैंने बताया था कि स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव कोरिलेशन। सेम वे वी विल बी एक्सप्लोरिंग द दिस हियर। तो लेट मी कॉपी इट, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ फॉर टाइम बिंग, जस्ट टू अवॉइड द टाइम ऑफ राइटिंग। तो ही एज आई एम यूजिंग द हीट मैप ना, तो एस एन एस का हीट मैप करके एक फंक्शन है, डॉट हीट मैप, यस हीट मैप, ठीक है। तो हीट मैप में यू हैव टू जस्ट गिव द डेटा फ्रेम, आप डेटा फ्रेम को पास कर सकते हो, ठीक है। हाँ सी, डेटा फ्रेम और कोरिलेशन करके, कोरिलेशन भी हैव एक्सप्लोर ना, कोरिलेशन से हमको निगेटिव पॉजिटिव वो सब कोरिलेशन पता चलता है गाइस, ठीक है। आ, यहाँ पे लेट्स से क्या होता है देखते हैं यहाँ पे, यू कैन कोरिलेशन हीट मैप, ओके लेट्स सी व्हाट हैपेंस if there is any error or any changes we will do it. What is the error? Could not convert string into float, मेल करके है ना, उसको float, ठीक है। तो let's remove this, remove this format, और मे बी एक काम करेंगे, एज जैसे कोरिलेशन हमको हमेशा न्यूमेरिकल डेटा पे आता है ना, तो उसके लिए वी कैन पास यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स है गाइस, उसके देखो न्यूमेरिकल ओनली करके है, इससे क्या होता है
आप न्यूमेरिक डेटा ही पास कर सकते हो एक्सप्लोर करने के लिए, बिकॉज जैसे वो देखा ना कि फ्लोट था, और ऐसे भी फ्लोट जो वैल्यूज है, मतलब जो नॉट फ्लोट बट द जो भी कैटेगरिकल और क्लासिकल वैल्यूज है, टेक्सचुअल वैल्यूज है, दैट इज नॉट इवन मोर रिलेटेड। सो इवन आप क्या कर सकते हो, उस कैटेगरिकल वैल्यू को 0101 लाइक 1 हॉट इनकोडिंग भी कन्वर्ट करके उसको इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। बट एट दिस मोमेंट वी आर जस्ट इंक्लूडिंग वॉट एवर आवर न्यूमेरिक डेटा इज, ठीक है। न्यूमेरिक डेटा को हम करते हैं, लेट्स सी अगर यहाँ पे भी फ्लोट का आया तो वी विल जस्ट रिमूव दिस। चल आगे, अभी न्यूमेरिकल डेटा हमने कंसिडर किया, तो यू कैन सी द हीट मैप। और हीट मैप में जैसे मैंने लास्ट सेशन में आपको एक्सप्लेन किया था, अ, जो डार्क कलर है ब्लू वाला, blue wala, so what it is saying, okay, this is showing you the negative correlation, strong correlation, and this dark color of brown is showing you the positive correlation, and that's why survive का survive से strong positive correlation which is 1, हाँ। but passenger class का survival से देखो negative correlation है, ठीक है। then you can see अलोन एडल्ट मेल, ठीक है। और लेट से एज, एज का सर्वाइवल से जो रिलेशन है दैट इज निगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। निगेटिव, तो भाई निगेटिव से यू यू रिमेंबर ना, व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट द कोरिलेशन एंड द रिलेशन वाला पार्ट, तो निगेटिव कोरिलेशन मतलब क्या, एक का वैल्यू अगर बढ़ता है तो करस्पॉन्डिंग जो भी रिस्पेक्टिव अनदर वेरिएबल है उसका वैल्यू कम होता है, दैट काइंड ऑफ रिलेशन, निगेटिवली कोरिलेटेड, ठीक है। एंड यू कैन सी के फिफ्थ here the alone adult male and passenger archery which is negatively correlated, okay। You can even relate the siblings का यहाँ पे आप age से देख सकते हो। उसके बाद you can relate age, तो age से आपको काफी अच्छा अंडरस्टैंडिंग होता है कि age, और अगर पैसेंजर क्लास को देखें, ठीक है, जैसे भी एज का जो कैटेगरी बढ़ रहा है, तो पैसेंजर क्लास मतलब हमारे केस में क्या था, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, तो यहाँ पे फर्स्ट क्लास इज 1, सेकंड क्लास इज 2 एंड थर्ड क्लास इज 3। तो देखो एज जैसे ज्यादा बढ़ रहा है, यू कैन सी द रिलेशन कि निगेटिव हो रहा है पैसेंजर क्लास, मतलब क्या, एज बढ़ रहा है तो पैसेंजर का क्लास का जो है वो घट रहा है। इन द सेंस गाइस, 20 से लेके 40 तक अमीर जो बंदे हैं ना, उनका जो क्लास है वो फर्स्ट क्लास है। एंड एज अगर देखेंगे तो उनका एज का जो उनका अर्निंग के हिसाब से एज बढ़ रहा था, तो उसके हिसाब से यहाँ पे क्लास का जो है तो सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास ऐसे उनका टिकट बुक हो रहा था, मतलब दैट दिस इज व्हाट इट इज शोइंग। तो यू कैन रिलेट इन दिस वे और कंक्लूड, आप कंक्लूजन भी निकाल सकते हो, राइट। But actually most of the things I need the input from your side, because I'm talking, you are listening, so this is not the interactive session. You can even tell me some relation whatever you are finding over here, that will be a good fare के बारे में, you can tell me something, fare और passenger class में relation, you can see this is negative positive correlation कहाँ पे दिख रहा है क्या आपको, mostly this graph is showing blue वाला format। यहाँ पे एक fare जो ऐसा faint relation है पॉजिटिव, is in between siblings एंड द पैसेंजर, ये आर्करी, ठीक है, ठीक है। देन सिबलिंग्स एंड दिस पी आर्च, ठीक है, पी आर्च। फेयर का आप देख सकते हो, फेयर, फेयर में देखो एक वीक पॉजिटिव रिलेशन आपको दिख रहा है यहाँ पे, हाँ। एट द एंड ये सब देख के व्हाट यू कैन कंक्लूड, एंड यू कैन इवन एक्सप्लोर इन मोर वे, बट अगर इसका कंक्लूजन निकालेंगे गाइस, ठीक है, कंक्लूजन में आप अगर आपको कुछ बोलना है इस डेटा को लेके, बिकॉज दिस एंड टू एंड एंड इनिशियल वॉट योर अर्लियर विच वी हैव सीन ना, ये बताया। फिर नेक्स्ट सेशन में आई विल एक्सप्लेन यू मोर ऑन द बॉक्स प्लॉट, ये बॉक्स प्लॉट कैसे इंपॉर्टेंट है, बॉक्स प्लॉट से आउटलायर कैसे निकालते हैं। सो दैट विल बी आवर नेक्स्ट सेशन वेयर विल बी प्रैक्टिकली लर्निंग हाउ टू डील विद द आउटलायर्स, ठीक है, नेक्स्ट सेशन में। इन दिस फर्स्ट सेशन यू आर जस्ट हैविंग सम प्रैक्टिकल एग्जांपल कि डेटा को किस वे से एक्सप्लोर करके उसको किस वे से हम रिप्रेजेंट करके कंक्लूड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने जो देखा, देखो यहाँ पे जेंडर के बारे में देखा था, ये जेंडर, जेंडर देखा, मेल फीमेल, ठीक है। तो यू कैन लाइक से सम, यहाँ पे देखो सर्वाइवल रेट अगर हम देखेंगे, सर्वाइवल रेट और काउंट, एज, एज का काउंट है, ठीक है, बेस्ड ऑन आवर लेट्स से फर्स्ट क्लास, या तो व्हाट वी कैन से कि पैसेंजर्स इन आवर फर्स्ट क्लास, यहाँ पे आप देखोगे तो सर्वाइवल है, देखो सर्वाइवल है और पैसेंजर का क्लास है, ठीक है।
पैसेंजर का क्लास एंड सर्वाइवल रेट। तो इससे आप अगर ये नेगेटिव दिख रहा है तो व्हाट यू कैन से कि भाई पैसेंजर इन फर्स्ट क्लास ना, ओके, दे हैड द हाईएस्ट सर्वाइवल रेट। जैसे मैंने बोला नेगेटिव कोरिलेशन कैसे, अगर पैसेंजर का जो क्लास कम कम होते जा रहा है, ठीक है, कम होते जा रहा है तो सर्वाइवल रेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो पैसेंजर का क्लास कम हो रहा है मतलब क्या, देखो फर्स्ट क्लास था, सेकंड क्लास था और थर्ड क्लास था, एंड यू नो कि फर्स्ट क्लास में सुविधा अच्छी रहती है, बराबर, जो भी मिलता है मतलब पहनने के लिए जैकेट वगैरह जो भी हो, जो भी खाना पीना, और ऊपर का क्लास टॉप का क्लास होगा। और यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि भाई पैसेंजर क्लास का सर्वाइवल रेट, तो सर्वाइवल रेट मतलब क्या, बचने की जो रेट था वो हाइयर है, मतलब जैसे ही पैसेंजर क्लास कम होते जा रहा है सर्वाइवल रेट बढ़ते जा रहा है। ठीक है, दिस इज व्हाट दिस रिलेशन इज शोइंग। तो ये आप कंक्लूड कर सकते हो इससे। ठीक है, और क्या लगता है आपको, क्या कंक्लूड हो सकता है इसमें से? यू कैन से कि एज एज के हिसाब से आप क्या बोल सकते हो कि भाई जो यंगर पैसेंजर है, यंगर मतलब जिनका एज कम है, उनका जो सर्वाइवल रेट है ना, उनका जो सर्वाइवल रेट है ये, वो क्या है, अच्छा है, बेटर है, राइट। सर्वाइवल रेट ऑफ द यंगर पैसेंजर्स, जिनका एज कम है, मतलब ये निगेटिव है इसलिए मैं बोल रहा हूं। देखो निगेटिव कोरिलेशन क्या बताता है आपने को, व्हाट डज द निगेटिव कोरिलेशन से। फॉर एग्जांपल मैं फिर से आपको वही लेके जाता हूं, जैसे मैंने बोला था कि इनवर्सली प्रोपोर्शन में क्या होता है, अगर कोई आपका व्हीकल है, व्हीकल का जो स्पीड है, अगर उस पर कोई वेट नहीं है, वेट नहीं है, उसका स्पीड इज गुड, अगर उसको ज्यादा वेट बढ़ाएंगे, वेट अप्लाई करेंगे, तो उसका स्पीड स्पीड जो है वो कम होने लगेगा। तो इसका रिलेशन कैसा है, वेट और स्पीड का। तो जैसे वेट बढ़ता है व्हीकल का स्पीड कम होता है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शन। सो दिस इज इनवर्सली रिलेटेड 1/s। ठीक है, वी कैन सी, हाँ, सिमिलर वे यहाँ पे रिप्रेजेंट करते टाइम वेट इज इनवर्स, वेट इज निगेटिवली कोरिलेटेड विथ स्पीड। सिमिलरली यहाँ पे क्या दिख रहा है, एज, एज जैसे घटते जा रहा है सर्वाइवल का रेट इज इंक्रीजिंग, एंड दैट्स व्हाई इट इज शोइंग द निगेटिव कोरिलेशन, निगेटिव कोरिलेशन, राइट। सो फ्रॉम दिस यू कैन इवन कंक्लूड कि भाई यंगर पैसेंजर जो थे उनका जो सर्वाइवल का रेट था वो हाई था, मतलब स्लाइटली वी कैन से बेटर था, बेटर था, मतलब उनके चांसेस अच्छे थे सर्वाइवल के। सो दीज आर सम बेसिक प्रैक्टिस ऑफ ईडीए गाइस, एंड एनीवे नॉट ओनली टुडे, हम जैसे भी आगे बढ़ेंगे प्री प्रोसेसिंग, फीचर इंजीनियरिंग, और जैसे मैंने बोला कि नेक्स्ट सेशन में हम बॉक्स प्लॉट का जो कैलकुलेशन है कि आउटलायर्स कैसे डिटेक्ट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, और उसके साथ डील कैसे करते हैं, दैट वी विल बी लर्निंग। ठीक है, so this was the first session of EDA, and which was giving you the idea कि in EDA how are you exploring the things, how are you exploring the data, and ये वाला प्रैक्टिस हमने पहले भी थोड़ा थोड़ा कर लिया था, and now in this in this EDA we will be exploring a lot। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको टेक्सचुअल डेटा है, तो टेक्सचुअल डेटा में कभी मतलब आपने कहीं पे तो देखा होगा ऐसे वर्ड्स का जो पैटर्न है, तो हाईएस्ट वाला वर्ड आपको हाईलाइट होता है, ज्यादा हाईएस्ट वाला वर्ड, और जिनका कम यूज हुआ है वो छोटे ऐसे बैकग्राउंड में छोटे छोटे दिखते हैं, जिसका ज्यादा यूज हुआ है वो हाईलाइट होता है। तो उस टाइप के एनालिसिस वगैरह टेक्सचुअल, फिर वी विल लर्न दोज एंड हाउ देयर रिप्रेजेंटेशन एंड हाउ इंपॉर्टेंट दोज आर। तो उसको कैसे डील करेंगे, प्री प्रोसेस कैसे करेंगे, फीचर इंजीनियरिंग कैसे करेंगे, वी विल एक्सप्लोर दोज थिंग्स, ठीक है, इन आवर सब्सिक्वेंट और नेक्स्ट सक्सीडिंग लेक्चर्स। Thank you guys. We can conclude the today's session now. If there is any question, you can feel free to ask. Feel free to ask. And I hope, as I said, कि at least आप एक एक घंटा दीजिए और एक्सप्लोर कीजिए चीज़ों को, या लर्निंग का आपका थोड़ा टाइम बढ़ाइए। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू गाइस, थैंक्स। हेलो गोरख सर। यस यस मोइन। हाँ, एक एक इधर एक्चुअली डाउट था, मतलब एक क्वेश्चन था यहाँ पे। हाँ आप जैसे बोल रहे ना कि वो पी क्लास के ऊपर फर्स्ट वाला जो कॉलम है, फर्स्ट रो जहाँ पे माइनस, हाँ ये 0.034 है, हम्म, तो वो कैसे मतलब कंक्लूड करेगी कि फर्स्ट क्लास वाले ज्यादा थे, हाँ जिसका सर्वाइवल ज्यादा था, वो वैल्यू क्या ओके, डिपेंड करती है, मतलब श्योर क्या श्योर, डिफाइन करती है एक्चुअली। हाँ हाँ यस और यस, उससे भी आपने एज का बोले तो यंगर एज का। हाँ ओके, यंगर एज का, ठीक है, ओके, वी विल डिस्कस मोर ऑन दिस। ओके, तो अपने पास पैसेंजर की क्लास है, और क्लास कैसे है, फर्स्ट हम्म, क्लास है जो कि 1 है, ठीक है, उसके बाद सेकंड क्लास है जो कि 2 है, और थर्ड क्लास है जो कि 3 है, राइट। बट मशीन को या कैसे समझता है, मशीन को ये फिगर समझती है, राइट, 1 2 एंड 3, हम्म, बराबर, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ओनली। ओके,
नाउ सर्वाइवल जो हम बोलेंगे, चलो सर्वाइवल का अगर मैं बोलता हूँ, यहाँ पे फिगर है जो भी अपना मतलब डेटा में है यहाँ, आप अगर इसका काउंट करोगे तो यू विल नो सर्वाइवल का काउंट कितना है। यहाँ पे है, लेट मी शो दैट एज वेल। ठीक है, तो सर्वाइवल का जो अपने पास है उसका अगर वैल्यू काउंट आप लोगे, अ, ठीक है, यहीं पे करते हैं सर्वाइवल का। एक कोड करता हूँ एंड लेट मी क्लियर दिस ड्राइंग। ठीक है, ड्राइंग को क्लियर करता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ। ठीक है, तो df डॉट, और वी कैन से इस ऐसे df का सर्वाइव करके है, और इसको अगर मैं वैल्यू काउंट, वैल्यू काउंट्स अगर मैं लेता हूँ, ठीक है, तो देखो यस और नो करके है अपने पास। ठीक है, सर्वाइव हुआ और नहीं हुआ, राइट, मतलब 0 एंड 1। तो जो नहीं हुए सर्वाइव वो है अपने 549, और जो सर्वाइव हुए वो है 342। ठीक है, नाउ उसकी भी वैल्यू, अच्छा यहाँ पे वो मैंने फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास 1 2 3 किया था, और यहाँ पे सर्वाइव का क्या है, 0 एंड 1। ठीक है, ओके, 0 एंड 1। नाउ जब हम इस पे जाते हैं अभी पैसेंजर क्लास, तो पैसेंजर क्लास अपना है क्या क्या है, 1 2 और 3, वो उसकी वैल्यू पी क्लास की। जैसे ही पैसेंजर क्लास की वैल्यू बढ़ रही है, हाँ, यू कैन सी कि जो सर्वाइवल है, सर्वाइवल, यस, हाँ, सर्वाइवल वो क्या हो रहा है, हम्म। कम हो रहा है, मतलब ये 1। ठीक है, तो इसको अगर इन टर्म्स हाँ ऑफ, वो ये हाँ क्या हाँ, करें, तो ऊपर मैप के अंदर वो कैसे हम लोग इसको आइडेंटिफाई क्या करें एग्जैक्टली। अच्छा, तो आप डायरेक्टली उसका मतलब एक नॉर्मल रिलेशन में अगर आप देखोगे तो इजीली अंडरस्टैंड ऐसे होगा। जैसे कि देखो पैसेंजर की क्लास क्या था, 1 2 3, तो 1 वाला जो पैसेंजर का क्लास है एक्चुअली वो फर्स्ट क्लास है, बराबर, फर्स्ट क्लास है, तो डेटा हम्म। को वो 1 दिख रहा है। ओके, अपने मशीन को इट इज सिंपली प्रॉपरली टेलिंग कि इट इज अ 1, वन वन वैल्यू, मतलब लेस वैल्यू एज कंपेयर टू 3। ठीक है, 3 मतलब अपना थर्ड क्लास था, 3, और 1 मतलब हम्म। फर्स्ट क्लास है। ऐसे ही इसकी जो फर्स्ट क्लास की जो फैसिलिटीज है वो ऑब्वियसली बेटर रहेगी, मतलब इसका फेयर भी ज्यादा रहेगा। आप अगर फेयर का भी यहाँ पे देखोगे ना, फेयर है क्या यहाँ पे, हाँ देखो फेयर है, देखो या फेयर। करेक्ट, बट ये तो अपना अंडरस्टैंडिंग है कि फर्स्ट क्लास में फैसिलिटी सब ज्यादा रहेगी, ओके। बट हाँ अभी अगर हम लोग ये सिर्फ प्लॉट, अगर जो आपने हीट मैप प्लॉट किए हो, हाँ हाँ अगर उसे सिर्फ रिफर करें तो उसमें हम लोग ये डिफरेंशिएट कैसा कर पाएंगे। मतलब मेरे को ये जो फर्स्ट है ना कि नीचे हाँ सर्वाइव लिखा है, ओके, एंड ऊपर हाँ पी क्लास, तो वो रिलेशन एक्जेक्टली समझा नहीं कि हम लोग ने कैसा कंक्लूड किया है कि फर्स्ट क्लास वाले ज्यादा थे जो हाँ सर्वाइवल है, हाँ हाँ एंड नीचे के क्लास वाले लेस सर्वाइवल है। हाँ, ये वाला हम देख रहे हैं ना पैसेंजर क्लास के बारे में। ठीक है, और वो हाँ, ये निगेटिवली कंक्लूड कैसा कोरिलेशन। किया हम लोगों ठीक ने। है,